अपनी आशीषें और बरकतों को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अबनेजर चर्च बिलगा को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੋਲੋ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥ ਭਿੜਦੇ ਗੋਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਗਰੰਟਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖ ਲਓ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਖਵਾਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਓ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100% ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਭਜਨ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੋ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ।
क्योंकि बाइबल की हर एक बात, हर एक गल, हर एक वचन जिहड़ा सच्चा आ। बाइबल दे विच जिहड़ी हर एक भविष्यवाणी की गई आ, जिन्नियां ने उस भविष्यवाणी नूं हल्के करके लिया आ, उन्होंने मुसीबत नूं देखिया। पहला तुस्कलानिया 5:12 5:20 आयत नूं पढ़ो, कोई जन पढ़ दो। पहला तुस्कलानिया 5:20 ध्यान दे नाल पढ़ो। ਅਗਾਂਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰਹੋ। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणी की, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। कभी कभी हम भविष्यवाणियों को, परमेश्वर की प्रोफेसियों को, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं। सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये बाइबल है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। परमेश्वर ने कहा सृष्टि बन जाए तो बन गई। परमेश्वर ने कहा इसके ऊपर पेड़ पौधे आ जाए तो बन गए। परमेश्वर के एक एक वर्ड के द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना होगी। जे प्रत्येक वर्ड जो इसके अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है। यशायाह के मुख के द्वारा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम यीशु है। वो 750 साल बाद पूरी होती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो नबी की जुबानी, जो परमेश्वर के दास के जुबानी परमेश्वर बात करता है उसे वो 100% पूरा करता है। उसमें से एक भी अक्षर न कम या ज्यादा नहीं होगा। जो परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा बोला है वो होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, लिखा है, मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं बोलता, लिखा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। जो अच्छी बातें हैं उसे पकड़ रखो, जो बुरी बातें हैं उन्हें छोड़ दो और बुराई से दूर रहो। आज परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? बुराई से दूर। मगर आज शैतान ने क्या किया हुआ है? मनुष्य को इतना 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 रिझा दिया है कि वो बुराई से निकलने का नाम ही नहीं लेता। माँ बाप चाहे रोए, चाहे पीटे, चाहे सेवक कुछ भी कहे, उनके ऊपर एक 5 पैसे की एक पैसे जैसा भी असर नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों के अंदर इन चीजों को मैं देख रहा था, बहुत सी मीटिंगों को अटेंड किया, मगर मैं अपने जीवन की बातों को बताता हूं। परमेश्वर के दास ने कहा कि तेरे ऊपर नबियों का आत्मा आएगा, तो वो आत्मा आज दिकर मेरे जीवन में कार्य करता है। पता नहीं कितने सालों पहले खुदा के बंदे ने मेरे लिए वो बात। ब्रदर ऐसा और मनोज लुधियाना के अंदर बेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री प्रेयर टावर के अंदर एक सेमिनार के अंदर बोल रहे हैं, जिनके पास काम नहीं उन्हें काम मिलेगा। जो सेवा करना चाहते हैं उनके आगे मेरा रूह खारी करेगा। वो तो चलेगा बोलकर, मगर वो प्रोफेसी मेरे जीवन में आज भी पूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की बातें जो उसके सेवकों के द्वारा बोलता है वो कभी नहीं टलती। हालेलुया। 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 भविष्यवाणी की बातों को तुच्छ ना जानो। दूसरा राजा उसका 7 अध्याय 19 आयत को देखेंगे। 19 वचन को हम देखेंगे। दूसरा राजा 1 मिनट मेरे को पहले देख लेने दो।
19 वचन से नहीं है, सात का 1 से पढ़ो। सात का 1 से पढ़ो। सॉरी, मेरे बोलने में गलती हो गया। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा जो कहता है, कल इसी समय शेमरोन के फाटक में समस्या भय सदा 1 शकेल और 2 सया जो भी 1 शकेल में बिकेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां अकाल का समय है। अरामी सेना इजराइलियों पर चढ़ाई किया हुआ है। क्या है, औरतें बच्चे खा रही हैं एक दूसरे को। तो जो राजा है वो कहता है, जो नबी है उसका सर उतार दो। जब हम 6 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो अकाल का समय है, युद्ध का समय है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब युद्ध होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय श्रोमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शकेल और 200 जौ भी 1 शकेल में बिकेंगे। क्या कर रहा है खुदा का दास? एक प्रोफेसी को बोल रहा है, एक भविष्यवाणी को कर रहा है। क्योंकि वहां पर जो एक कबूतर की बीट होती है वो भी बहुत महंगे में बिक रही है। आगे पीछे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, 2 औरतें लड़ रही थी और राजा टहल रहा था। तो औरतों ने अपनी दास्तान सुनाई, वो आपस में झगड़ रही थी। तो राजा बोला, तू क्यों झगड़ रही है? वो बोली, कल इसने मेरे बेटे को खाया पकाकर, हम दोनों ने खाया मेरे बेटे को, आज इसके बेटे की बारी है। ये बोलती है, मैं नहीं मारूंगी। राजा ने कपड़े फाड़े और क्या हुआ? परमेश्वर के सामने और क्रोध से भर गया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, मगर जैसे जैसे परमेश्वर का रूह, जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा, मैं वैसे वैसे उन बातों को आपके सामने, जहां भविष्यवाणी की बात हो रही है, हम तुस्कलानिया की बुक के अंदर पढ़कर आए कि भविष्यवाणी की बातों को तुच्छ ना जाए। लिखा है कि कल इसी समय, जिस समय खुदा के दास ने बोला, ठीक उसी समय वो कार्य होगा। क्या हो जाएगा? जैसे मानो आज महंगाई बहुत है, महंगाई के बाप बढ़ चुके, दाम बढ़ चुके हर एक चीज के, तो वहां पर भी दाम बढ़े हुए थे। तो खुदा का दास कहता है कि कल इसी समय, क्या श्रोमरोन के फाटक में से 100 भर मैदा 1 शकेल। मान लो ऐसे बात कर सकते हैं कि 1 किलो मैदा 1 पैसे दे विच मिलूगा। इस तरीके दे नाल हम मान लेते हैं। और लिखा कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, कल सारी वस्तुओं के जो महंगाई किया है उनके रेट कंट्रोल में आ जाएंगे, वो नॉर्मल हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। आज जितनी महंगाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सोचते हैं जो रेट आसमान को चढ़ गए वो कभी कम नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका और मेरा परमेश्वर ये सब करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो चीजों के भाव बढ़ गया वो कम होने वाला। तो बोला कि ये जो लड़ाई झगड़े का कार्य वो शीघ्र समाप्त हो जाएगा, भोजन वस्तुओं के दाम सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। मगर दुआइत के अंदर लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी ऐसी बात ना हो सकती। तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? उसने कहा, सुन,
तुझे अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? खुदा का दास प्रोफेसी बोल रहा है, परफेक्ट वर्ड बोल रहा है कि कल इसी समय सारी चीजों के दाम सामान्य हो जाएंगे। जो लोग तकलीफ में झूंझ रहे हैं, खाने को नहीं है, अपने बच्चों को खा रहे हैं, कल उन्हें भोजन मुहैया होगा, कल उन्हें खाना मुहैया होगा। मगर वहां का सरदार क्या कहता है कि अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। इसको किसके विरोध में खड़ा हो गया वो? किसके विरोध में खड़ा हो गया वो? जोर से बोलो, किसके विरोध में खड़ा हो गया? जब हम भी परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं तो हम भी परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। उसके लिए भी खुदा का बंदा अलीशा बोल रहा है, जे होगा तू अपनी आंखों से इसी फाटक के ऊपर देखेगा, मगर तू उस अन्न में से कुछ खा नहीं सकेगा। हालेलुया। क्या हुआ? वो परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझता है। आज भी हम कभी कभी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को जो खुदा के दास करते हैं, अपनी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जा बोल मेरी बेटी को कि आज रात तू चंगी हो जाएगी। बोल दे कलीसिया को आज रात आपकी सारी जरूरतें मेरा परमेश्वर पूरी करेगा। तो लोग हल्के में लेते हैं। जब हम हल्के में लेते हैं तो हम डाउनफॉल के अंदर चले जाते हैं। हम ऊपर को नहीं जाते, हम नीचे को जाते हैं। आप अपने अपने जीवन को जांच कर देखो। जितने भी खुदा के दासों ने आपके बारे वर्ड बोले हैं, अगर आपने ग्रहण किए तो आप ऊपर को गए हैं। अगर आपने नहीं ग्रहण किए तो आप अपनी लाइफ को चेक करके देखिए, आप डाउनफॉल में हैं। बिजनेस में आपको कमी आई होगी, घाटा पड़ा होगा। आपके परिवार के अंदर आपका पैसा वेस्ट गया होगा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आ चुकी होंगी। क्योंकि जो भी कोई खुदा का बंदा बोलता है वो अपनी ओर से नहीं बोलता, वो परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के वर्ड को आप तक पहुंचाता है। हालेलुया। जब जिब्राइल फरिश्ता आया मरियम के पास तो वो किसकी ओर से आया था? वो अपनी ओर से नहीं था। इसीलिए वचन के अंदर लिखा है, जो मेरी ओर से है वो मेरा है, जो मेरे भेजे को ग्रहण करता है वो मेरे को ग्रहण करता है। हालेलुया। आज हम बहुत से छोटे बड़े सेवकों को तुच्छ जानते हैं, उनका आदर नहीं करते, जो वो बातें बोलते हैं उनको हम ग्रहण नहीं करते। तो आगे चलकर हम देखते हैं अरामी सेना का भागना क्या हो गया। पहली बात, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। दूसरी बात, भविष्यवाणी हो रही है, वो व्यक्ति तुच्छ जान रहा है, उसका रिजल्ट देखो आगे जाकर क्या होता है। हाँ जी पढ़िए 3 आयत से। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आराम ने कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम जहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमारा मरना ही है। क्या लिखा है? जब हम यहाँ 3 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं तो जहां 4 कोढ़ी है वो आपस में बात कर रहे हैं। आज हम सोचते थे कोढ़ी क्या करें। आज हम किसी छोटे व्यक्ति को देखते हैं, प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं, हम बोलते जे व्यक्ति क्या करेगा। मगर नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो कौओं से भी काम लेता है, गधों से भी काम लेता है। राइट? कौआ बहुत चालाक पक्षी है, उससे भी उसने काम लिया। क्या कहा? मेरा दास अलीशा
बैठा है नाले के ऊपर, जा उसको खाना मुहैया कर। बिलाम की गधी को क्या बोला? अरे बोलकर बता कि सामने दूध खड़ा है, इसे दिख नहीं रहा, जो अंधा हो गया पैसे के लालच में। हमारा वो परमेश्वर जहां 4 कोड़ी है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कोड़ी बताते हैं कि क्या आपस में बातें करने लगे कि हम मर जाएंगे, अगर शहर में रहे तो भी मरेंगे, अगर अरामी सेना में घुस गए तो भी मरेंगे। इन्होंने एक फैसला किया कि आज शाम हम अरामी सेना के डेरे, उनके तंबुओं में जाएंगे। जब इन्होंने फैसला किया तो क्या होता है? जब हम आगे तक पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने अपनी गर्जना के साथ, गड़गड़ाहट के साथ अरामी सेना को उस जगह से भगा दिया। हालेलुया। वहां से अरामी सेना भाग गई। मेरे प्रियो, कभी कभी हम बीमारी की हालत में, लाचारी की हालत में होते, बोलते हम क्या करेंगे, गरीबी की हालत में होते हम क्या करेंगे। मगर जब आप एक फैसले के साथ, एक बड़ी फेथ के साथ आप परमेश्वर के साथ चलने का वायदा करेंगे कि मरना तो है, मरने से पहले क्यों ना मैं परमेश्वर के वचन पर फेथ करूं, मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे दूं और मैं अब परमेश्वर की बातों का मनन करूं, तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोल देगा, आपके लिए दुश्मन को हटा देगा और आपको महिमा का कारण बनाएगा, आपको आदर देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये कोड़ी है, जब इन्होंने फैसला किया आगे बढ़ने का, मुझे बड़े परमेश्वर को मालूम था, उसने इन कोड़ियों के फैसले को देखा, इनके मन को देखा, इनकी बातों को देखा, तो पहले से अपने दूतों को भेज दिया अरामी सेना को भगा दिया। जब आप ईमान के साथ, फैसले के साथ, वायदे के साथ परमेश्वर से चलने का प्रॉमिस करेंगे, तो परमेश्वर आपके प्रॉमिस से पहले ही आपके दुश्मन को, आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को आपके जीवन में से हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? पहली बात, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। दूसरी बात, भविष्यवाणी हो रही है वो व्यक्ति तुच्छ जान रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरा कैसे कर रहा है, जो उसने अपने दास के द्वारा उस समय इजराइलियों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा का बंदा कभी अपनी ओर से नहीं बोलता, वो वर्ड की ताकत को जानता है, परमेश्वर के वचन की ताकत को, उसकी सामर्थ के विषय में जानता है, वो कभी आनाकानी नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के वचन की ताकत को, परमेश्वर के वर्ड की ताकत को जान जाएंगे तो आप कभी आनाकानी नहीं करेंगे। आज हम जब परमेश्वर के वर्ड, परमेश्वर के वचन की ताकत को नहीं पहचानते, तभी हम शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं, तभी हम बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं, तभी हम समस्या की गिरफ्त में आ जाते हैं। और इसका 9 आयत में हम पढ़ते हैं, पढ़ो। तब वह आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम को फूटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बदला देते। हालेलुया। क्या देखा वो कोड़ी जब तंबू के अंदर गए, उनकी शिवानी के अंदर गए, तो वहां सोना, चांदी, मैदा, आटा, सारी वस्तुएं पड़ी हुई, जहां तक कि तो वो कोड़ी क्या कहने लगे, अगर आज मेरे को गुड न्यूज मिली है, आज मेरे को अच्छा समाचार मिला है, अगर मैं इसे छुपाता हूं तो मैं दंड के योग्य हूं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम कभी कभी परमेश्वर के वचन को छुपा देते हैं, दबा देते हैं, लोगों को नहीं सुनाते, इसके कारण हमें दंड को भोगते, मुसीबत को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रहूं
जा ना रहूं, मगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अटल रहेगा। आज मान लो, कल मान लो, अगर आप मानोगे तो अगले स्टेप पे जाएंगे, अगर नहीं तो कहां रहोगे? जिस जगह पर आप थे उससे भी डाउनफॉल चले जाएंगे, उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो क्या हुआ? इन्होंने वो खबर, इन कोड़ियों ने कहा ये अच्छी बात नहीं है, वो फूटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बता देते हैं। हालेलुया। किसको? राजा के घराने को। क्योंकि उस समय सिचुएशन ये थी कि सब लोग मौत के साए में थे, मर रहे थे, क्योंकि अरामियों ने इतना हल्ला मचा रखा था, इतना आतंक मचा रखा था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और खाने पीने को कुछ भी नहीं था, वो अपने बच्चों को खा रहे थे। तो 10 आयत के अंदर कहाँ गए वो? पढ़िए। जब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की श्रेणी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे श्रेणी में से मैदान में छिपने की ये कह कर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़ लेंगे, नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान ले। हालेलुया। जब उस राजा को जो न्यूज मिली, वो रात को उठा तो वो शरीर के भाव से सोचने लगा, मगर वहां के लोगों ने अलीशा नबी को बोलते हुए देखा था। उन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया हुआ था, उस भविष्यवाणी को रिसीव किया हुआ था। जहां राजा भी शरीरक भाव से देख रहा है, उस नबी की सेवक की बातों पर नहीं। क्या कह रहा है कि अरामी जानते हैं कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, वो हमें फंसाने के लिए जो सारी चाल खेल रहे हैं ताकि हमें जिंदा मार सके। तो वो क्या करने लगा? जांच करने लगा। कभी कभी हम शरीर के भाव से देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर ने आपके लिए वो वर्ड बोला है तो वो आपके जीवन में 100% पूरा होगा। बिना पूरा हुए वो वापस नहीं आएगा। अगर वो राजा चाहता कि हाँ खुदाबंद के दास ने ऐसा बोला था, वो हो गया, आमीन, आओ हम शुवानी के अंदर चलते हैं, मगर क्या किया? उसने शरीरक भाव से उसकी जांच की, उसने भी भविष्यवाणी को तुच्छ जाना। और लिखा 14 आयत में, अंत उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनके आराम के सेना के पीछे भेजे और कहा, जाओ देखो। तब वह जर्दना तक पीछे चले और क्या देखते हैं? पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है। और जिन अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया, तब दूत लौट आए और राजा ने जी कहा, राजा को जी कह सुनाया कि उन्होंने जांच की, ये रामी सच में भाग गए। हालेलुया। अब बारी आ गई, प्रोफेसी पूरी हो चुकी है जो खुदा के दास ने। अब उसका रिजल्ट और क्लियर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोफेसी होती कैसे? जब लोग प्रार्थना करते, जैसे इजराइल में, मिस्र के अंदर इजरायली क्या कर रहे थे? प्रार्थना। तो परमेश्वर ने
मूसा के लिए एक प्रोफेसी की, जा जाके मेरे लोगों को छुड़ा ला, मैं तेरे साथ में हूं। प्रोफेटिक वर्ड भी जहां पर भी लोग प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया परमेश्वर और अपने नबी के द्वारा वो सारी चीजों के दाम के विषय में बोला कि कम हो जाए। और 16 आयत के अंदर लिखा है, तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरे को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 100 एक शकेल में और 200 जो एक शकेल में बिके। हालेलुया। जैसा खुदा के नबी ने क्या कहा था वो 16 आयत के अंदर पूरा हो गया। हालेलुया। एक आयत के अंदर बोला था वो 16 आयत के अंदर पूरा कर दिया। मानो 24 घंटे बाद वो बात पूरी हो गई, वो समय से कभी नहीं। और अगली बात, जिसने तुच्छ जाना था, अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वो तकिया करता था, मानो वो सरदार कैसा था, राजा को वो तकिया देता था, अपने हाथ पे तकिया रखता था, राजा उसके ऊपर सर रखकर सोता था। वो खास आदमी था राजा करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। जे परमेश्वर के भगत के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके जहां आने के समय कहा था। हालेलुया। राजा ने उस सरदार की ड्यूटी कहां पर लगा दी? फाटक के भीतर लगा दी कि तू फाटक के भीतर खड़, कोई भी इधर से उधर ना जाने पाए, सारे लोग आराम से भोजन वस्तु ले जाएं। जैसे जैसे खुदा के नबी ने, खुदा के बंदे ने कहा था, वैसे वैसे ही हुआ। ठीक, आप पढ़कर देखो इस वचन को, जैसा एक आयत में लिखा है वैसा ही 16 आयत में लिखा है या नहीं लिखा है? तो लिखा, वो सरदार लोगों के पांव के नीचे आकर मर गया, दब गया और कुचला गया। क्या कहा था खुदा के बंदे ने कि तू अंत को देखेगा तो सही, मगर खा नहीं पाएगा। हालेलुया। वो वर्ड जो खुदा के बंदे ने बोले वो पूरे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। जे परमेश्वर के भगत ने उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके जहां आने के समय कहा था। जब राजा आया था उसके आने के समय जो बातें उसने कही थी, परमेश्वर के भगत ने जैसे राजा से जे कहा था, कल इसी समय शिरोम के फाटक में 200 जौ एक शकेल में और 100 मैदा एक शकेल में बिकेगा। वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भगत के को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू यहाँ अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु खा नहीं, उस अन्न से में से कुछ खा नहीं पाएगा। अंत उस साथ ठीक वैसे ही हुआ। अथवा वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया। जैसी जैसी खुदा के बंदे ने, मैन ऑफ गॉड अलीशा ने बातों को बोला था, वो बातें वैसे ही पूरी हो गई। हालेलुया। आज जब हम इन बातों को, वचन को देखते हैं तो हमें बहुत शौक लगता है, मगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम भविष्यवाणियों को बहुत से लोगों के जीवन में बोला जाता है तो वो तुच्छ समझते हैं, वो उन बातों को बोलते नहीं। कभी कभी खुदा का दास वचन के द्वारा कभी कभी वैसे ही बोल जाता है, हम तुच्छ समझते हैं। मगर यहाँ सरदार ने वो गलती की, तुच्छ समझने की। परमेश्वर की बातों को उसने खाली अलीशा को देखा, मगर ये नहीं देखा कि अलीशा के अंदर कौन बात कर रहा है, अलीशा के द्वारा कौन बोल रहा है, अलीशा के द्वारा कौन इस प्रजा को तसल्ली दे रहा है। आज कभी कभी हम खुदा के सेवकों को देखते हैं, मगर उनके बीच में से जो बात करता है उस चीज को नहीं देखते।
अलीशा के द्वारा यहोवा बोल रहा था, अलीशा के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था अपने लोगों के लिए और उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहा था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर उत्तर दे रहा है। जिन जिन लोगों के जीवन में भविष्यवाणियां हुई है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आप हल्के में मत लो। जब आप हल्के में लोगे तो डाउनफॉल जाओगे। जैसे सरदार गया, इसने अन्न को देखा मगर खा नहीं पाया, लोगों के पांव के तले रौंदा गया, ठीक उसी समय जिस समय खुदा के बंदे ने कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमें सुचेत रहना होगा। परमेश्वर के प्रत्येक वचन को हमने पकड़ना है, परमेश्वर की प्रत्येक बात के ऊपर अपने मन को लाना है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 वचन पढ़िए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में है लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसके जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उनका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? वो सरदार के जीवन में क्या उसने तुष्य जाना परमेश्वर के लिए। यहाँ लिखा है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियां, इस पुस्तक में किसकी बातें हैं? इस पुस्तक में किसकी बातें हैं? कहता है जो इस पुस्तक की, बाइबल की बातों की भविष्य, इस पुस्तक की भविष्यवाणियां की बातों को, बाइबल की भविष्यवाणी को, बाइबल के वचन को, बातों को सुनता है, गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पर विपत्तियां लाए। कहने का मतलब कभी कभी तोड़ मरोड़ कर हम वचन को सुना देते हैं, गोल एक मीठा लड्डू दे देते हैं, विपत्तियां आएंगी। और लिखा जो इसमें जो लिखा उसे कम करे, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से उसे निकाल दे तो परमेश्वर उसका जीवन के वृक्ष, मानो जीवन की पुस्तक में से उसका नाम निकाल दिया जाए। जो इन बातों को मानता है और ग्रहण करता है, परमेश्वर कहता शीघ्र मैं आने वाला हूं तेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रत्येक वचन आदर के लिए है। फिलिपिया 4:8 इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के ऊपर लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की बातें क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग मैं हूँ। जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आदरणीय है। अगर परमेश्वर ने किस चीज को आदर दिया है, वो अपने वचन को आदर दिया, अपने
और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। सुहावनी बातें कौन कौन सी हो सकती है? परमेश्वर के वचन से बढ़कर कोई सुहावनी बात नहीं हो सकती। अगर वो सरदार वो खुदा के बंदे को समझता, कहता हाँ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन, जो तू बोलता है वैसा ही होगा, आमीन, तो वो सरदार अन्न खाता भी और जमीन पर जिंदा भी रहता। उसके ऊपर विपत्तियां नहीं आती, मगर उसने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, उन्हें वो सत्य की बातों को तुच्छ जाना। परमेश्वर किसी का चेहरा देखकर बरकत नहीं देता, आशीष नहीं देता, ब्लेस नहीं करता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तसल्ली देता है, अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में भविष्यवाणी करता है, आपके जीवन में आनंद को भर देता है। हालेलुया। भजन संहिता 69:28। पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? उनका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। किनका नाम? जो जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य 22 के अंदर क्या पढ़ा? जीवन के वृक्ष में से उनका नाम मिट जाएगा। कहने का मतलब जीवन की पुस्तक में से उनका नाम मिट जाएगा। व्यवस्था विवरण 4:2 अभी खत्म करूंगा मैं जल्दी से। पढ़ दीजिए। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते ना, वो बरके ही फोड़ते रहते हैं। कभी बाइबल को इधर कभी उधर घुमाते। जो पढ़ लेते, पढ़ा होता ना जरूरी, और फटाक से निकाल देते। 4:2 जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाया और ना कुछ घटाया। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। क्या लिखा? जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें से ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम सुनना। हालेलुया। कहने का मतलब, अगर परमेश्वर का दास आपको इस वचन में से सुना रहा है तो आप उसमें से ना कम करना ना ज्यादा, उन बातों के ऊपर मनन करना, और आप 100% नहीं 500% यीशु मसीह के नाम से सुपर ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे कि उन लोगों ने, जो अलीशा ने बोला, उन्होंने रिसीव किया। जैसे उसने बोला था वैसे ही उस समय हुआ, मगर सरदार ने नहीं माना, वो मारा गया। और दूसरी बात, वचन से बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता, वचन से बड़ी कोई सच्चाई नहीं हो सकती, और बाइबल से बड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। मूसा भी कह रहा है, जो जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, तुम उन्हें मानना। अगर कोई बाइबल से बाहर बात खुदा का बंदा बताता है तुम उसे मत मानो। अगर इस बाइबल में से आपको वचन भविष्यवाणियों के विषय में या आपके लिए प्रोफेसी हो रही है इस बाइबल में से, तो आप उन बातों को फॉलो करना, आप उन बातों को लेना। हालेलुया। अगर खुदा का दास कहता है आपके पास कि मेरा यहोवा परमेश्वर ऐसे कहता है कि आज रात तुम पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, तो आप अपने मन को फिराना शुरू कर लिए, आपको नया जीवन मिलेगा। आप अपना पश्चाताप करो, आप अपने मन को फिराओ, तुम चंगे हो जाओगे, तो आप मन फिरा लेना, आप चंगे हो जाओगे।
हालेलुया। हालेलुया। तुष्य ना लेना, बाइबल से बड़ी कोई प्रोफेसी नहीं हो सकती। और बाइबल का खुदा कहता है कि आज मैं आपके जीवनों को बदल दूंगा। जैसे वहां कहा कि वो चीजों के रेट दाम कम हो जाएंगे, वैसे ही हुआ। जैसे उस सरदार के लिए बोला था, उसके साथ वैसे ही हुआ। अगर हम इस वचन को फॉलो करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे साथ भी वैसा होगा। अगर नहीं चलते तो फिर सरदार जैसा होगा। क्या है, दो तरह के लोग हैं, एक परमेश्वर की बातों को लेने वाले, एक परमेश्वर की बातों को नहीं लेने वाले। जो परमेश्वर की बातों को लेने वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं ले रहे वो कुचले जा रहे हैं। वो लोगों को ब्लेस होते तो देख रहे हैं, मगर उनको कोई आशीष नहीं मिल रही। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी प्रोफेसी आपके लिए हो, आपको सुन रहे हो, तो आप इसे तुच्छ मत जानो। अगर कोई खुदा का दास आपके लिए परफेक्ट वर्ड प्रोफेसी बोल रहा, भविष्यवाणी कर रहा है, उसे तुच्छ मत। लिखा है, अच्छी बातों को ले लो, बुरी को छोड़ दो। हालेलुया। 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 खुदा आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते, जितने भी लोग इस मैसेज को सुने वो तेरे यीशु नाम से आशीष पाएं, तेरे यीशु नाम से ब्लेस हो जाएं, तेरे यीशु नाम से उन्नत हो जाएं। और सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।